Hello students, so today we are going to start a new chapter of science. Basically, we have already studied about light and its effects such as reflection and refraction in our earlier classes. Today what we are going to study is human eye and the colorful world. So this time also I am going to divide this whole chapter into two parts. The human eye in the first part and the colorful world or the light in the second part. Colorful world of the light in the second part. So first of all, what is the main purpose of human eye? That is to provide vision to our body. We need to see objects. How can we see objects? The objects can be seen with the help of two things. First, the presence of light, because the light will scatter from that body, the light will be get reflected from that body and then it reaches our eyes. And the eyes has the ability to catch or the absorb that light and change that into a particular perception. Okay, so human eye works in such a way. So this is basically how our human eye looks like. First and the foremost thing, sir, what is the function of the different parts we have moved? The outer part, the outer covering of the eye, there is a layer to protect the inner parts. This outer layer is known as, this layer is known as scleroid. It provides protection. The inner part, just below the scleroid, we have the most important part, what is the cornea. It is the transparent part of the human eye that helps the light to get in, or that helps the light to get reflected within the human eye. Then we have these two shutter like things. These two shutters are known as iris. These are known as iris. The gap between the two iris is this gap. This gap is known as pupil. This broad lens-like structure, this convex lens, this is the main refractive part. This is known as the eye lens. Okay, this red hand-like structure, these are the muscles. These are ciliary muscles. Okay, there is a covering in the last layer of the, on the last layer of the human eye, there is a covering of a special tissue known as the retina. And this is the optic nerve. Okay, other than this,
the internal part of this eye is not empty or vacuum. It is filled with a transparent clear liquid. It is filled with a liquid here. This liquid is known as vitreous humor. H-U-M-O-R, not H-E-M-O-U-R, humor. Similarly, there is a liquid present here also. This liquid is known as aqueous humor. So, these are all the parts that we have already marked. What are those? The scleroid, cornea, iris, pupil, eyelens, ciliary muscle, retina, optic nerve, vitreous humor and the eyelens. Now, এক এক করে প্রত্যেকটার ফাংশন বলতে হবে। প্রথমে scleroid, the outer layer. We already have a eyelid over our eyes. The eyelid, this one, the skin, which helps in protection, which helps in closing the eye. But other than this, we have an external covering of just below, just before the cornea. That covering is known as scleroid. Next, we have the transparent part of the eye known as the cornea. Cornea is the place through which the light refracts inside the eyelids, also the eyeball. Then we have two shutter-like things. Shutter, you know what is the meaning of shutter? Means something that can be closed and can be opened. This iris is something like this. These two black objects, they are just shutter-like. They can close and they can open depending on will. तो इसका काम क्या है? They help in regulating the amount of light that enters our eye. अगर हम लोग dim light में है तो iris ज्यादा खुलेगा so that more light can enter. अगर हम लोग bright light में है तो iris बंद हो जाएगा so that not a large amount of light enters our eye. क्योंकि हमारे आंख में ज्यादा लाइट भी घुसने से आंख को हानि होगा और कम लाइट घुसने से हमको दिखेगा नहीं. So I need a moderate amount of light. तो ये कैसे करेगा? By controlling the size of the iris. And the gap between the iris is known as pupil. Actually what happens, if you draw the human eye in the straight way like this, है ना? The human eye represent the eye that we see from the outside represents more or less like this. This whole part is the iris that regulates कि कितना लाइट घुसेगा कितना लाइट नहीं. This also provides the eye to the eyeball. मतलब आई लेंस का पर्टिकुलर कलर होता है ना, कोई ग्रीन आई, कोई ब्लैक, कोई ब्राउनिश, ब्लूइश. ये कलर प्रोवाइड करने का काम भी आइरिस का है. There is a covering, the black thing that we see is called the iris. और ये जो गड्ढा बीच में देख रहे हैं आप, the gap between the iris is known as the pupil. The pupil is always black. Do you know why? क्योंकि लाइट तो बाहर से अंदर घुसता है, अंदर तो कोई लाइट नहीं है, इसलिए अंदर ये पोर्शन हमेशा हमको ब्लैक दिखेगा. Because internal part of the eye is always black. Okay, so this portion is always black. एक आदमी का आई का कलर ब्राउन हो, ग्रीन हो, येलो हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, हमको नहीं मालूम, लेकिन इनर पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट देखो वो हमेशा काला होता है. Why? क्योंकि it is a gap, it is a complete hole, vacuum, a blank present between the iris, through which the light can enter into the eyeball. So that's why this portion is always black. Then we have the aqueous humor and the vitreous humor. सर ये लिक्विड रखने का जरूरत क्यों पड़ा? हम तो यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते थे. सर देखो, अगर हम लिक्विड नहीं रख के अगर ब्लैंक एयर रखते तो इन केस ऑफ अ शॉक और इन केस ऑफ अ एक्सीडेंट क्या होगा? अगर हमारा आईबॉल गलती से पिचक गया तो इट विल नॉट बाउंस बैक. Just take an empty bottle. If you are crushing an empty bottle, the empty bottle will be crushed forever. वो फिर से अपना शेप रिगेन नहीं करेगा. लेकिन अगर उसके अंदर पानी भरा हो और फिर अगर तुम उसको क्रश करो तो वो दबेगा कुछ देर के लिए, लेकिन फिर वो अपना शेप में वापस आ जाएगा. The same thing happens with our eye also. अगर हम आई के अंदर के पार्ट को अगर एयर या वैक्यूम रख देते
तो क्या होता, अगर वहां धक्का लगता या कोई कारण से वो अगर प्रेस्ड होता तो जैसा है वैसा उसका साइज डिफॉर्म, उसका शेप डिफॉर्म कर जाता। बट एज वी हैव अ लिक्विड फील्ड ऑब्जेक्ट, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, वो बाउंस बैक कर सकता है। तो अब पूछेगा सर इसके अंदर ब्लड क्यों नहीं है तब? अरे ब्लड इज नॉट ओपेक, ब्लड इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इज ओपेक। अगर इसके अंदर ब्लड रहता तो लाइट कैसे ट्रेवल करता है यहां तक? It would have been not possible for the light to travel at the end of the eyeball. So that's why it has to be transparent and clear. Next is the eye lens. Eye lens is the main part through which the refraction of light takes place and the light rays can converge over the retina. यहां से converging समझते हैं ना, वो मिरर में लेंस में पड़े हैं, the light ray यहां से एंटर करेगा ऐसे और फिर जाके यहां पे ये कन्वर्ज करेगा लेंस, यहां पे मीट करेगा। ठीक है, so it helps in the refraction, main most important optic part of this human eye. तो अब प्रॉब्लम ये है कि इन कैमरा, अगर आप लोग का DSLR कैमरा है तो आप लोग अच्छा जानेंगे, we have to focus things. कैसे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे विद द बाय रोटेटिंग द रिंग ऑफ द लेंस, ताकि हम दूर का चीज और नजदीक का चीज देख सकें। अब आंख में तो कोई फोकसिंग नहीं है कि आप कैसे घुमाए और आंख आगे निकल जाए पीछे आ जाए। तो हाउ कैन वी सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड द नियरर ऑब्जेक्ट्स? This is done by these two red things, the ciliary muscles. Ciliary muscles are flexible and the eye lens is also flexible. वो क्या करेगा? Muscles have the ability to move. We have already studied this in control and coordination. So muscles move करना शुरू करेगा। Muscles either stretch होगा या फिर contract होगा। अगर muscle stretch होता है तो it will pull the eye lens with itself. The eye lens will become thin. Eye lens जितना thin होगा उसका focal length उतना ज्यादा होगा, means उतना दूर का चीज देख पाएगा। और आई लेंस जितना मोटा होगा उतना उसका फोकल लेंथ कम होगा, वो नजदीक का चीज। तो इससे क्या होता है, ये जो सिलेरी मसल है इस तरह अप एंड डाउन करेगा, वो जरूरत पड़ने पे बहुत लंबा खींच देगा ताकि दूर का चीज देख सके, और जरूरत पड़ने पे वो चपटा कर देगा आई लेंस को ताकि वो नजदीक का चीज देख सके। दिस थिंग्स विल गो ऑन एंड इट विल चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस सो दैट वी कैन सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स एंड नियरर ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट? सो अगर हमारे आंख में ये एबिलिटी है कि वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब बात आता है कि सर ये जो लाइट आया, लाइट तो कन्वर्ज करके रेटिना में चला गया, तो रेटिना में कैसे हमको ये इमेज फॉर्म करता है? रेटिना इज अ स्पेशल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। Rod cells are responsible for light और the brightness detection, कि कितना ब्राइट है ऑब्जेक्ट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमको मिल रहा है। और ये कोन सेल क्या है? कोन सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग कलर, कि हमने ये रेड पहना है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। इस तरह एक कलर डिटेक्ट करने के लिए कोन सेल और अमाउंट ऑफ लाइट या फिर ब्राइटनेस ऑफ द लाइट जानने के लिए रॉड सेल। दिस टू सेल्स हमारे बॉडी में बाय बर्थ होता है। अगर किसी के बॉडी में ये सेल्स ना हो, सो दैट पर्सन विल आइदर बिकम कलर ब्लाइंड और नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंडनेस सुने ना बीमारी, इसका मतलब क्या है? रात होने पे दिखता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि अगर कम लाइट हो, बिकॉज उसके बॉडी में रॉड सेल कम है, ये बाय बर्थ है, यू कैन नॉट चेंज इट। रॉड सेल अगर कम होगा तो उसका अमाउंट ऑफ लाइट या अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस डिटेक्ट करने का पावर कम होगा। सो दैट एज ए रीजन वो कम लाइट पे उसको लगेगा कि लाइट है ही नहीं और उसको नहीं दिखेगा कुछ। सिमिलरली अगर किसी में कोन सेल कम है तो उसको कलर डिटेक्ट करने का एबिलिटी नहीं है, कलर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो दैट पर्सन विल बिकम कलर ब्लाइंड। ठीक? सो दिस इज हाउ अवर रेटिना वर्क्स। अब देखो रेटिना किससे जुड़ा हुआ है? रेटिना इज कनेक्टेड विद द ऑप्टिक नर्व हियर। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला, जो भी यहाँ पे इमेज बना, that information has to be taken to the brain. So this thing is done by the optic nerve. अब यहां एक और बात, if you see कि इस eyeball का this is the part where image formation is going to be likely, सबसे ज्यादा इमेज यहां पे फॉर्म करेगा क्योंकि स्ट्रेट है। So this portion, the most sensitive part of the retina, जहां पे हमको सबसे ज्यादा रॉड एंड कोन सेल मिलता है, सो दैट कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इमेज बनता है। दैट्स व्हाई गॉड ने यहाँ पे सबसे ज्यादा रॉड एंड कोन सेल्स भर दिए हैं। दिस स्पॉट इज नोन एज येलो स्पॉट।
ऑफ आवर रेटिना। यहाँ पे सब मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई बॉल ऑफ आवर रेटिना। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ना रॉड सेल, इस जगह पे देयर इज अ वैक्यूम, यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं है, मींस देयर इज नाइदर रॉड सेल नॉर कोन सेल। तो अगर बाय चांस यहाँ पे अगर कोई इमेज फॉर्म भी करता है, so we will not be able to see it. Why? Because ना rod cell है ना cone cell है. So this is the least sensitive part of the human eye and this is known as the blind spot. Correct? So this is the yellow spot and this is the blind spot. So this is how our human eye works. Light enters through the cornea, reaches our eye lens, then it gets converged to a point on the retina. The retina has the ability to detect amount of light and the amount of color. Then the information received by the retina is sent to the brain for perception by using optic nerve. Correct? And the distance and the far distance or the near distance of the human eye is adjusted by changing the focal length of the eye lens, which is done by the ciliary muscle. Correct? अब आपसे एक चीज पूछते हैं, ठीक है? हमने कहा ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ह्यूमन आई कैन सी ऑल्सो द नियर ऑब्जेक्ट्स। बोलिए तो हम लोग कितना दूर देख सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द फार डिस्टेंस दैट वी कैन सी? द मैक्सिमम फार डिस्टेंस दैट वी कैन सी इज इंफिनिटी। फार देखने का कोई एंड नहीं है। अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो तो हम जितना दूर चाहे उतना दूर देख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन सी द सन, द मून एंड द स्टार्स। इतना दूर है सन, मून, स्टार, फिर भी हमारा आई कैन इजिली सी इट। व्हाई? बिकॉज वी हैव इंफिनिटी एज द फार पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इंफिनिटी इज द फार पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन अगर आप नजदीक से देखना चाहें तो कितना नजदीक लाने पर आपको क्लियरली दिखेगा? दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप 25 सेंटीमीटर इज ऑलमोस्ट दिस मच इज 25 सेंटीमीटर। अगर आप इसके नजदीक अगर लाते हैं तो यू विल सी कि यहां पे दर्द करेगा या फिर ब्लर हो जाएगा, आपको ठीक से नहीं दिख पाएगा। दैट इज अ साइन दैट योर आई इज परफेक्टली करेक्ट। लेकिन अगर आप यहां तक लाके भी अगर परफेक्टली रीड कर पाते हैं, दैट मीन्स योर ह्यूमन आई इज नॉट परफेक्ट। आप में कुछ एरर है, तभी जाके आप 25 सेंटीमीटर के नजदीक लाके भी आप पढ़ सकते हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर यू। वो खराब है, वो साइन है कि आपका आंख खराब होना शुरू हो गया, वो फ्यूचर में जाके खराब होने वाला है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर यहां से नजदीक में अगर ब्लर हो जाता है, दैट मीन्स योर आईज आर परफेक्ट। हाँ, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द far distance of distinct vision and least distance of distinct vision. The maximum distance of distinct vision is infinity and the minimum distance of distinct vision is 25 centimeter. Correct? Now, इसीलिए भगवान ने हम लोग को 2 आंख दिया है so that we can perceive or we can see the perspective of our surroundings. मतलब अगर हमको कोई चीज को परफेक्टली देखना है, पता लगाना है कि वो सराउंडिंग्स के तुलना में नजदीक में है या दूर में है, तो हमको 2 चीज को एक साथ देखना पड़ेगा। मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, क्लास 9 याद है ना? तो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमको दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली ये पेन और ये पेन कौन सा नजदीक है, ये जानने के लिए हमको 2 पेन को एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर दिस वी हैव 2 आईज। एक आई नजदीक का चीज देखता है तो दूसरा आई दूर का चीज देखता है। हमारा आई बॉल को, हमारे आई लेंस को उसी प्रकार स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एक आई बॉल नजदीक का चीज देखे तो एक आई बॉल दूर का चीज देखे। दैट्स व्हाई भगवान ने हमको 2 आंख दिया है। सो फॉर परफेक्ट परसेप्शन ऑफ द सराउंडिंग्स, हमको नियरर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स का परफेक्ट हमको परसेप्शन मिले। अगर तुमको मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, जब हम लोग शूटिंग करते हैं, मार्केट में होता है ना शूट करना होता है बलून पे, या फिर हम कोई चीज पे एम लगाते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, एक आंख को बंद कर लेते हैं। क्यों एक आंख बंद कर लेते हैं? अगर दोनों आंख खुला रखेगा तो एक जिसको फोकस करना है वो भी देखेगा और उसका अगल बगल के ऑब्जेक्ट्स को भी देखेगा, क्योंकि एक चीज नजदीक देखेगा तो एक चीज दूर देखेगा। हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको जिस पे देखना है सिर्फ उसी को फोकस करना है, अगल बगल के चीज को नहीं देखना है। So what we do? We close the eye.
और एक आंख बंद करके इसे शूट करते हैं, है ना? क्यों? कि जो हमको देखना है, जो हमारा टारगेट है, सिर्फ वही देख पाएंगे। 2-3 चीज देखने लगेंगे तो मेरा टारगेट मिस हो जाएगा। ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी हैव 2 आईज। नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। What is this power of accommodation? तुम जो नजदीक का चीज देख रहे हो या दूर का चीज देख रहे हो, तुम्हारा आई ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। तुमको क्या कभी बटन दाबना पड़ रहा है या लेंस घुमाना पड़ रहा है कि तुमको दूर का चीज देखो या नजदीक का चीज देखो? ना सर, ऑटोमेटिकली माई ब्रेन कैन कंट्रोल द मसल, और जब मसल के स्ट्रेच या कॉन्टेक्ट होने पे ऑटोमेटिकली द आई लेंस का भी मेरा फोकल लेंथ चेंज होगा और हम दूर का चीज और नजदीक का चीज देखते हैं। सो आवर एबिलिटी, ये जो हमारे बॉडी का यूनिक एबिलिटी है कि आई कैन साइमल्टेनियसली, एक साथ हम दूर का चीज और नजदीक का चीज ऑटोमेटिक फोकस कर सकते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। बूढ़े होने पर क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल कम हो जाता है और हमारा ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है। ना मतलब ना कि हम जनरली कोई दूर के चीज को फोकस कर पाते हैं, ना ही हम ठीक से नजदीक के चीज को फोकस कर पाते हैं। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन, मींस द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू साइमल्टेनियसली, एक साथ फोकस ऑन द फार्दर ऑब्जेक्ट एंड फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और टर्म है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये क्या चीज है सर? परसिस्टेंस ऑफ विजन। इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड इन साउंड चैप्टर परसिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन ईयर, या फिर परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, दैट द साउंड स्टेज 1/10th of a second in our ear before we can hear another sound. Similarly, the light or the image that forms on our retina stays for 1/16th of a second before we can see another image or another light. This time or this gap is known as the persistence of vision. और मत सोचिए ये खराब है, ये अच्छा है। This is important for cinematography. हम लोग जो वीडियो देखते हैं या एनिमेशन देखते हैं या ग्राफिक्स देखते हैं, ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। कैसे सर? देखोगे तुम लोग तो सब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो आजकल तो यूट्यूब, टिकटॉक, लाइकी, म्यूजिकली, ये सब का जमाना है। देखो अगर वीडियो रिकॉर्ड करो तो वहां पे तुमको ऑप्शन दिया जाएगा 30 FPS, 60 FPS, 25 FPS, 50 FPS। ये सर FPS क्या है? FPS इज फ्रेम पर सेकेंड। एक्चुअली वीडियो कैसे बनता है मालूम है? वीडियो इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। जैसे मान लो हमको किसी को स्लैप करना है, तो हमको ये जो पूरा वीडियो है जो तुम देख रहे हो, वीडियो हम जो यूट्यूब में बना रहे हैं, ये हम डिफरेंट पिक्चर्स लेंगे, इमेजेस। पहला फोटो ऐसा, दूसरा फोटो ऐसा, तीसरा फोटो ऐसा, चौथा फोटो ऐसा, फिफ्थ फोटो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर आई विल टेक 10 to 15 फोटोज लाइक दिस। और इन 10 फोटो या 15 फोटो को इतना फास्ट मूव करेंगे कि ये मेरे परसिस्टेंस ऑफ विजन से भी फास्ट होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एक इमेज के साथ दूसरा इमेज ओवरलैप कर जाएगा और हमको ये सारे फोटोज ब्रेक करके नहीं, स्मूथ वे में दिखाई देंगे और हमको लगेगा कि ये कोई वीडियो चल रहा है। करेक्ट? सो दिस इज हाउ माई सिनेमेटोग्राफी इज डन। इन द अर्लियर डेज जब कार्टून बनता था, पीपल यूज टू ड्रॉ द कार्टून बाई हैंड। एक एक करके कार्टून का ये ड्रॉ करते थे और दे यूज टू रोल द पिक्चर्स इन अ फास्ट वे सो दैट कि वो ओवरलैप कर जाए। फिर आप लोग देखेंगे वो कोई टॉय मिलता है या मैजिकल बुक्स मिलते हैं बाजार में कि द केज बर्ड इज वेटिंग आउटसाइड। अगर आप पेज को पूरा फ्लिप करेंगे तो लगेगा बर्ड वो केज के अंदर घुस गया। कैसे होता है सर? वो सारे इमेज पर पेज में अलग अलग होते हैं। अगर आप इतने जल्दी पेज को फ्लिप कर रहे हैं कि लगेगा वो एक वीडियो जैसा बने। ठीक है? सो दिस एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई सो दैट वी कैन ओवरलैप वन इमेज ओवर द अदर इज ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो ये है हमारे ह्यूमन आई का सारा वर्किंग, कैसे ह्यूमन आई काम करता है।
उसको दूर का चीज नजदीक का चीज कैसे दिखता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है और परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है। अब है सर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो भगवान ने हमको दिया है, इसको केयर कैसे लें। द बेस्ट थिंग टू इसको केयर लेने के लिए क्या है कि इसको बार बार ठंडे पानी से आंख को धोना चाहिए, सो दैट आंख ठंडा हो सके। इसमें अगर कोई टॉक्सिक वेस्ट जमता है, गंदगी जमता है तो वो साफ हो जाए। दूसरा, ट्राई करो कि आंख में बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ना हो। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होने से इस चीज को बहुत खतरा है, रेटिना को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट घुसेगा तो रेटिना का सेल्स डैमेज हो सकता है। दैट्स व्हाई देखो ना, अगर तेज रोशनी में हम लोग जाते हैं तो वी यूज गॉगल्स, सनग्लासेस यूज करते हैं ताकि तेज लाइट हमारे आंख में ना आए। हमारे आंख में ऑलरेडी आइरिस दिया हुआ है जो कंट्रोल करता है, लेकिन आइरिस को भी कंट्रोल करने में, खुलने बंद होने में समय लगेगा। दैट्स व्हाई गॉगल्स पहनना अच्छा है। जैसे सर कैसे टाइम लगता है, जैसे कभी देखोगे अगर आप बाहर हैं धूप में, बाहर से साइकिल चला के आए और जैसे आप घर में घुसते हैं तो 2-3 सेकंड के लिए सब अंधेरा लगता है, कुछ दिखता नहीं है घर में। व्हाई? क्योंकि जब आप बाहर थे, बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट था बाहर सन का, तब आपका आइरिस एकदम छोटा हो गया था। जब आप घर के अंदर घुसते हैं तब तो लाइट उतना ज्यादा नहीं है, आपके आइरिस को तो खुलना पड़ेगा सो दैट द लाइट कैन एंटर, तो तब तक आपके आंख को समय चाहिए। उल्टा सोचो, आप सो रहे हैं, मस्त सो रहे हैं, सुबह को 5 बजे इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, है ना। तो मस्त आप सो रहे हैं एकदम, है ना, आपका आईलिड बंद है। जब आईलिड बंद है तो ये आइरिस देख रहा है कि भाई मेरे सामने तो कवर दिया हुआ है, तो आइरिस भी रिलैक्स करता है, आइरिस भी थोड़ा सा खुल जाता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। अब मम्मी आई, ए उठ रहे, लाइट ऑन कर दी। जैसे मम्मी लाइट ऑन कर दी, मां चौके लग से लाइट ऑफ करो। ऐसे क्यों करते हैं, आंख में लगता क्यों है? वाई? क्योंकि हमारा आइरिस जो है वो पूरा खुला हुआ है। जैसे मम्मी लाइट ऑन करती है, बहुत सारा लाइट आंख के अंदर घुसना शुरू हो जाता है जो रेटिना को परेशान करता है, तो आइरिस बंद होना शुरू करेगा। लेकिन आइरिस जब तक बंद होगा, उसको 2-3 सेकंड समय चाहिए, तब तक आपका आंख में चोट मतलब लगेगा, स्ट्रेन हो। इसीलिए बोलते हैं लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, है ना। नींद से उठने के बाद हर आदमी को देखने में तकलीफ होता है, ऐसे ऐसे करता है, फिर उसको पूरा, क्योंकि आंख में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। आपका आइरिस पूरा खुला हुआ रहता है, जब तक वो बंद होगा तब तक आपको आंख में स्ट्रेन होगा। करेक्ट? सो दिस इज हाउ आवर आई वर्क्स। अब आंख तो एक तो बोले आंख को साफ करने का, आंख को अच्छा रखने का तरीका है यूजिंग वाटर। दूसरा है देखिए हाई लाइट और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट और लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आंख में ना घुसे। और थर्ड है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर यू मस्ट विजिट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मींस आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अगर बाई चांस आपके आंख में डिफेक्ट्स आना शुरू हुआ तो शुरू में ही वो बंद हो सके। अब सर आंख का डिफेक्ट कितने सारे हैं? वी हैव 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कौन कौन सा? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरैक्ट। सॉरी 5 हो गए ना, 5। The 5 diseases we are going to discuss. So we were discussing the defects of human eye. कितना सारे डिफेक्ट्स देखे सर? कैटरैक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सर ये क्या है? क्या है ये सब डिसीज? क्या होता है हमारे आंख में? पहला कैटरैक्ट। व्हाट इज कैटरैक्ट? कैटरैक्ट इज कॉल्ड द क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस। हमारा आई लेंस जब हमारा आई, पहले ये बात जान लो, आईबॉल जो है बड़ा ही मजेदार चीज है। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट फ्रॉम द बर्थ टू एज वी आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, हर बॉडी पार्ट का ग्रोथ होता है। आईबॉल का ग्रोथ नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रह जाता है। इसलिए देखो बचपन में बच्चा लोग का आंख बड़ा बड़ा दिखता है। वाई? उसका माथा छोटा होता है और आंख बड़ा होता है। जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो मुंह का आकार बढ़ते जाता है, लेकिन आईबॉल उतना ही रह जाता है। ठीक है, इसलिए आपका टीन एज तक 20 साल 25 साल तक आपका आंख ठीक लगेगा, लेकिन जैसे आप बूढ़े होने 30 या 35 या 40 साल हो जाएंगे तो देखेंगे आंख के सामने आईबॉल छोटा हो गया। क्यों? आपका मुंह बड़ा हो जाएगा, मुंह फ्लैशी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फुल जाएगा, और आंख का साइज तो वही रह गया, छोटा ही रह गया। ठीक है, मतलब वही सेम साइज का रहेगा। तो हमारे क्या होता है, ये जो मतलब यहाँ पे मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट आईबॉल में कोई चेंजेस नहीं आता, जन्म से जैसा है वैसा ही रह जाता है। अब आई लेंस को हमारा सिलेबी मसल जिंदगी में कितना बार जो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट किया कोई गारंटी नहीं है, बार बार उसको चेंज करना पड़ रहा है, अपने साइज को बढ़ा रहा है, कमा रहा है, छोटा कर रहा है, पतला कर रहा है।
तो ये जो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट के कारण आई लेंस क्या होता है, फ्रिक्शन होता है उसमें। तो फ्रिक्शन बचाने के लिए एक्वस ह्यूमर है, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। ये धीरे 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 क्या होता है, उसका जो आई लेंस है वो पूरी क्लाउडी हो जाता है, मतलब पूरा साफ ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। आई लेंस ट्रांसपेरेंट के जगह में ट्रांसलूसेंट हो जाता है। एज ए रिजल्ट सारे लाइट हमारे आंख के अंदर नहीं जा पाते, बिकॉज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, whereas translucent object allows partial movement of light, पूरा लाइट को पार होने नहीं देता। तो हमारे आई लेंस में पूरा लाइट अंदर नहीं घुसेगा, एज ए रिजल्ट हमको सब कुछ धुंधला दिखेगा। दैट्स व्हाई डॉक्टर क्या करते हैं, ये आई लेंस को काट के निकाल देते हैं और एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक आई लेंस वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय सर्जरी। इसको ठीक कैसे किया जाता है, बाय सर्जरी, मतलब ऑपरेशन के थ्रू। इसके अलावा कैटरैक्ट का कोई उपाय नहीं है। काट के आई लेंस को निकाल देंगे और नया आई लेंस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। हमारा आई लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस, ऐसा लाइक दिस कन्वेक्स लेंस। उम्र होने के साथ साथ क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का जो कर्वेचर है, जो बाउंडेड जो कर्व सरफेस है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। इस तरह हो जाता है, लाइक दिस, ऐसे टेढ़ा हो जाता, ऐसे हो जाता आई लेंस। अगर आई लेंस टेढ़ा हो गया तो क्या होगा, उसका सब तो सर उसका जो नॉर्मल है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सब तो चेंज हो गया। तब तो मेरा इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। So that is called astigmatism. The curvature of the eye lens becomes improper or rough. As a result, the eye cannot focus properly on the things. This is called astigmatism. इसका उपाय लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी से उसको दोबारा प्लेन किया जाता है, जो जनरली होता नहीं है, बहुत महंगा है। फिर क्या है, इसका भी उपाय है सर्जरी। फिर प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया कैसे ठीक करेगा, अच्छा प्रेसबायोपिया होता क्या है, आई टोल्ड यू इन द अर्लियर पोर्शन दैट ह्यूमन आई के जो आई लेंस है उसको कंट्रोल करने का उपाय किसके पास है, सिलियरी मसल के पास। सिलियरी मसल स्ट्रेचेस और लूजन्स द आई लेंस सो दैट इट बिकम्स थिक और थिन, सो दैट इट कैन सी द फार्दर ऑब्जेक्ट्स और नियरर ऑब्जेक्ट्स। जैसे जैसे आप उम्र होते जाता है, जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपका मसल का मूवमेंट वीक हो जाता है। और सिलियरी मसल भी तो अल्टीमेटली है तो मसल, अगर आपका बॉडी का मसल वीक हो रहा है तो सिलियरी मसल भी वीक होगा। एज ए रिजल्ट द सिलियरी मसल्स कैन नॉट मूव सो फास्ट एंड इट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू फोकस ऑन फार्दर ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट, मतलब उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन खराब हो चुका है। दिस डिफेक्ट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। तो कैसे उसको ठीक करेंगे, मतलब ना ही सर उसको हमको ठीक से दूर का चीज दिखेगा, ना ही उसको ठीक से नजदीक का चीज दिखेगा। इसलिए देखोगे स्पेशली आपके जो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर अगर आप लोग के होंगे तो दे विल यूज लाइक दिस काइंड ऑफ लेंस, ऐसे लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस देखोगे नीचे, दे यूज बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मतलब उस लेंस का जो नीचे वाला पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, वो एक अलग लेंस होगा एंड द अपर पार्ट है वो एक अलग लेंस होगा। देखे ना, अगर ग्रैंडफादर आप लोग के घर में या ग्रैंडफादर मम्मी अगर होंगे घर में तो देखना उनका जो लेंस है, जो स्पेक्ट्रल्स दैट वी वियर, दे हैव टू डिफरेंट लेंसेज इन द सेम ग्लास। क्यों, एक नजदीक का चीज देखने के लिए, एक दूर का चीज देखने के लिए। दिस काइंड ऑफ लेंसेज आर नोन एज बाइफोकल लेंसेज और इट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रेसबायोपिया। करेक्ट। तो सर ये दोनों क्या है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसको जानने के लिए हमको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। What is myopia? जनरली क्या होता है, ह्यूमन बींग्स हैव अ परफेक्ट स्फेरिकल आईबॉल लाइक दिस, पूरा गोल आईबॉल होता है।
ठीक है, दिस इज द आई एंड दिस इज द आई लेंस. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. अब जनरली क्या होता है सर, हमारा अगर कोई नियरर ऑब्जेक्ट है तो नियरर ऑब्जेक्ट से भी लेंस में लाइट जाएगा और ये रेटिना पे फोकस करेगा. करेक्ट. और अगर फार्दर ऑब्जेक्ट्स है तो वो भी रेटिना पे फोकस करेगा. ठीक है, इन बोथ द केसेस वी कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट्स एंड फार्दर ऑब्जेक्ट्स एक साथ दिख जाता है. प्रॉब्लम क्या होगा, ड्यू टू एनी सिचुएशन, कोई अगर हमारे बॉडी में कोई एरर आए, कोई डिसीज आए एंड अवर आई बॉल एलोंगेट्स, आई बॉल इस तरह लंबा हो गया तो, या फिर हमारे ये जो आई लेंस है ये मोटा हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया. सो क्या होगा, जो नियरर ऑब्जेक्ट्स हैं, नियरर ऑब्जेक्ट को तो ठीक फोकस कर देगा, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको वो यहीं पे फोकस कर देगा, वो पूरे रेटिना तक नहीं जा पाएगा. मींस इट कैनॉट ट्रेवल अ सो डिस्टेंस. हाँ, क्योंकि ये दूर चला गया, हमको तो एबिलिटी था यहीं तक फोकस करने का, यहीं तक वो फोकस कर सकता था, इससे दूर तो वो जा नहीं सका क्योंकि आई बॉल लंबा हो गया है. करेक्ट, प्रॉब्लम हो गया. हमको तब क्या होगा, नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखेगा. दैट्स व्हाई मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस. Why in myopia people can see nearer objects but cannot see farther objects. आप में से जितने जन आज चश्मा पहनते हैं, मानी, अंगोना, फिर क्या नाम है, और भी कोई चश्मा पहनता है क्या, आई कैनॉट रिकॉल, जो भी आप लोग पहनते हैं, दे विल सी, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि दे कैन नॉट सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स, दूर का चीज नहीं देख पाते, नजदीक का चीज देख पाते, बिकॉज दे हैव दिस डिसीज मायोपिया, नियर साइटेडनेस है उन लोग को, ऐसा प्रॉब्लम. तो सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस. व्हाई सर कनकेव? कनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस. वो रेज को दूर फैला देता है, वो दूर तक जाने का एबिलिटी आ जाएगा उसमें. कैसे? लेट अस सी. दिस अवर एलोंगेटेड आईबॉल. आईबॉल लंबा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और लंबा कर देंगे. ठीक है, चलो. दिस अवर एलोंगेटेड आईबॉल. हम क्या करेंगे सामने, वी विल प्लेस अ कनकेव लेंस. मींस आप लोग जो भी लेंस यूज कर रहे हैं वो सारा कनकेव है. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फार्दर ऑब्जेक्ट्स है डाइवर्ज हो जाएगा, मींस दे विल ट्रेवल लाइक दिस. फार्दर हो जाए तो ये दूर तक ट्रेवल करने का इसको. Got it? How does it works? This is the rectification of myopia. Myopia is also known as nearsightedness because in myopia we can see only the near objects. We cannot see the distance objects. So therefore, in a myopia, the near point remains same. हमारे आँख का near point क्या है? 25 सेंटीमीटर. और far point क्या है? Infinity. तो हमारे near point में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नजदीक का चीज देख पाएंगे. प्रॉब्लम क्या होगा? दूर का चीज देखने में. Therefore, in a myopia, डिफेक्ट क्या हो जाता है? The near point remains same, but the far point comes closer. मतलब हम infinity नहीं, मेरा far point मैक्सिमम होगा 1 मीटर, सॉरी 100 मीटर या 200 मीटर मैक्सिमम. हम उसके दूर नहीं देख पाएंगे. And how to rectify? By using a concave lens. Correct? Now we are moving on to hypermetropia. Hypermetropia में क्या होगा? सेम, ये डायग्राम तो सेम होगा कि our eyes work like this. अगर वो परफेक्टली राउंड हो. अब अगर ये राउंड ना होके आईबॉल यहां एलोंगेट कर गया, या फिर मेरा ये जो आई लेंस है इसका कर्वेचर ज्यादा हो गया, हम उल्टा बोलते हैं, आइदर माय आईबॉल विल कॉन्ट्रैक्ट, आईबॉल विल श्रिंक.
मेरा आई बॉल कैसे गोल होना चाहिए था, बट गोल ना होकर वो श्रिंक कर गया। तो अब क्या होगा, नाउ सी जो नियरर ऑब्जेक्ट्स हैं अब यहां देखो, जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो ठीक रेटिना पे जाके फोकस कर गया, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स है वो रेटिना को पार करके चला गया, कहीं और जाके फोकस कर, रेटिना पे फोकस ही नहीं हो रहा। तो हमारा तो रेटिना के पास रॉड सेल कोन सेल है, तो अगर रेटिना में अगर इमेज ना फॉर्म किया तो हमारा बॉडी उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, मींस वी कैन इजीली सी फर्दर ऑब्जेक्ट्स बट वी कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। आपके मम्मी पापा को जिसको चश्मा लग गया है, देखो मम्मी पापा को अगर चश्मा लग गया हो तो दे कैन नॉट रीड द पेपर विद द ब्लैंक आई, नेकेड आई से वो लोग पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ना पड़े दे विल रीड लाइक दिस, ऐसे दूर कर देंगे लाइक दिस, तब जाके पढ़ेंगे, दूर से पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज देयर नियर पॉइंट हैज गॉन फार। नियर पॉइंट ह्यूमन का क्या है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अभी वो 25 सेंटीमीटर दे कैन सी एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर दूर, कोई कोई देख पाएंगे 100 सेंटीमीटर दूर, उसके पहले देख ही नहीं पाएंगे। बट दे कैन वेरी इजीली सी फार ऑब्जेक्ट्स, दूर का चीज पर आराम से देख जाएंगे। करेक्ट? तो दैट्स व्हाई हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। Why? Because in hypermetropia people can see farther objects but cannot see nearer objects. Therefore, in hypermetropia the far point remains same. Far पर infinity था, वो infinity रह गया, लेकिन the near point has gone far. Near point 25 ना होके वो 50 या 100 हो गया। Correct? This myopia generally takes place in younger age. जैसे आप लोग इसलिए myopia हुआ, and this hypermetropia generally takes place in the older age. बूढ़े होने पर ये hypermetropia। ठीक है? और एकदम बूढ़े हो जाएंगे तब तो प्रेस बायोपिया हो जाएगा, ना नजदीक का चीज दिखेगा ना दूर का चीज दिखेगा। दैट्स व्हाई नीड बोथ द लेंसेज। मींस इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर इसको ठीक करने के लिए हमको रे को दूर ले जाना पड़ा था, डाइवर्ज करना पड़ रहा था, दैट्स व्हाई वी वर यूजिंग अ कनकेव लेंस। यहां हमको लेंस रेज को नजदीक लाना है, सो वी विल यूज अ कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज वी विल यूज अ कन्वेक्स लेंस। हो गया फोकस? मतलब ये क्या कर रहा है, ये मेरा कन्वर्ज करने नहीं पा रहा। हम एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा, दो कन्वर्जिंग लेंस की मदद से वो मेरा ठीक रेटिना पे कन्वर्ज हो जा रहा है। सो कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज फार साइटेडनेस। इट हेल्प्स अस टू सी नियरर ऑब्जेक्ट्स एंड कनकेव लेंस हेल्प्स अस टू सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स। और प्रेस बायोपिया में दोनों लेंस लगा रहता है सो दैट वी कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट्स एंड फार्दर ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। समझ में आया ये बात? सो दिस डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड द रेक्टिफिकेशन बाय यूजिंग अ डायग्राम, या एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मायोपिया एंड द रेक्टिफिकेशन बाय यूजिंग अ डायग्राम। ये एस्टिग्मेटिज्म या प्रेस बायोपिया, इसका डायग्राम नहीं आता, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म, हाउ कैन इट बी क्रिएटेड, हाउ क्योर्ड, व्हाट इज प्रेस बायोपिया, हाउ इट कैन बी क्योर्ड, बस इतने तक। लेकिन एक्सप्लेनेशन इन दोनों का आएगा भर भर के। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इन दोनों का डायग्राम आप लोग एग्जाम में पढ़ के जाए। ठीक है? सो सर ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो लेंस से ठीक हो सकता है एंड ऑल्सो थ्रू सर्जरी भी ठीक हो सकता है। ठीक है? हम सर्जरी करके अपने इस आई बॉल के कर्वेचर को चेंज कर देंगे, सॉरी आई लेंस के कर्वेचर को। अगर आई लेंस बड़ा या छोटा हो गया, पूरा आई बॉल लंबा या छोटा हो गया, तब तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आई बॉल अगर लंबा या छोटा हो गया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आई लेंस का कर्वेचर या अगर लंबा या छोटा हो गया है आई लेंस का, तो उसको सर्जरी के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका कॉज क्या है? आइदर द आई बॉल एलोंगेट्स और द आई लेंस हैज गॉट एक्सेसिव कर्वेचर।
ज्यादा ही मोटा हो गया। इसका एरर क्या है? आइदर द आई बॉल शॉर्टेन्स और द आई लेंस हैव गॉट वेरी लेस कर्वेचर। ठीक है, सो दिस इज द टू कॉजेस। और इसका इफेक्ट्स क्या क्या है? इफेक्ट है इसका नियर पॉइंट रिमेन सेम बट द फार पॉइंट कम्स क्लोजर। इसका फार पॉइंट रिमेन सेम बट द नियर पॉइंट गोज फर्दर। इसका क्योर क्या है? इसका क्योर है कॉन्केव लेंस, इसका क्योर है कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। The next portion shall be the colorful world, that is the spectrum, and how does the spectrum occurs. Thank you.